Now today we'll start with continue with the topic that we were studying, storage classes. So in the last class we had studied about two storage classes. One was the auto storage class or automatic storage class, and the second was external storage class. Now automatic or auto storage class is auto storage class is nothing but it is all local variables are automatic. They belong to the automatic storage class, and all global variables are belong to the external storage category. Okay, now the third type of storage class is static, and then we have the register storage class. Now, if you remember, I had told you that whenever we differentiate between the various storage classes, it is done on the basis of four things. First is initialization. Then second is scope. Third is lifetime. And fourth is place where the variable is stored. Okay. Now, except for for automatic, if we just revise for automatic variables, the initialization, if an automatic variable is not initialized by the user, it assumes a garbage value. It does not get initialized on its own. So automatic variables do not get initialized on their own if they are not initialized by the user. Scope and lifetime of an automatic variable is within the function or block in which they are defined, and they are stored in the memory. Okay. Now, if we talk about the characteristics of an external variable, the external variables का initialization, अगर यूजर एक एक्सटर्नल वेरिएबल क्रिएट करता है और अगर उसको इनिशियलाइज करना भूल जाता है, then automatically external variables are initialized on their own according to the data type. अगर कोई वेरिएबल external variable या global variable integer type है, तो it will be initialized with 0. The scope and lifetime of say global variable or an external variable is the entire program, and again the variables are stored in the memory, that is the RAM. Okay. Now we will study the third type of storage class, that is static, and the fourth, that is register. Now register type, पहले हम register पढ़ लेते हैं, then we will see the static data type. Now register variables, normally all variables are stored in the memory. अभी तक हमने जितने भी टाइप के variables पढ़े, local, global, ये सारे variables कहाँ पे store होते हैं? RAM में, memory में. Okay. And as accessing memory location is slightly time consuming, so at times क्या होता है, कभी कभार क्या होता है कि कोई एक particular variable बहुत ज्यादा बार यूज हो रहा है आपके प्रोग्राम के अंदर. Say a variable, there is a variable which is used say 10,000 times. Okay. Now every time you access that variable from the memory, it's going to take some time, because memory जो RAM होती है, RAM is not within the CPU. चिप के प्रोसेसर चिप के ऊपर नहीं होती है RAM अलग से होती है, प्रोसेसर के बाहर होती है. So it will take some time to fetch the data. Okay. अगर हमें अपने प्रोग्राम को बहुत फास्ट बनाना है, like real time applications होते हैं जहां हमें टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है, so there we need to save on time. तो क्या कर सकते हैं हम? there is an option, आप वेरिएबल को मेमोरी में ना स्टोर करके उसे एक रजिस्टर में स्टोर कर सकते हो. एंड अ रजिस्टर इज a special type of memory location which is there on the processor itself. But one problem with the registers is that there are only limited number of registers on the processor.
ठीक है, तो आप चाह के भी हर वेरिएबल को रजिस्टर में स्टोर नहीं कर सकते हो, बट इन केस यू फील कि कोई एक ऐसा वेरिएबल है जो बहुत बार यूज हो रहा है, मतलब इट इज यूजिंग बीइंग यूज्ड फॉर से 10,000 20,000 टाइम्स, then you can create that variable of register type, so that if now remember, if a register is vacant, then only this variable can be stored in that register. ठीक है, मतलब अगर आप किसी वेरिएबल को रजिस्टर टाइप बना देते हो तो ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि वो वेरिएबल रजिस्टर में ही स्टोर होगा क्योंकि से आपने बोला है कि वो एक रजिस्टर टाइप वेरिएबल है। नो, दिस इज नॉट द केस। अगर कोई रजिस्टर फ्री होगा then definitely that variable will be stored in the register, ठीक है, अदरवाइज नहीं। मीन्स कि वैसे अगर आप कोई भी वेरिएबल बनाओगे तो वो सारे वेरिएबल्स मेमोरी में स्टोर होते हैं, लेकिन अगर आप कोई एक वेरिएबल को रजिस्टर टाइप डिफाइन कर देते हो, देन if there is memory available, if there is memory available तो किसी भी वेरिएबल को रजिस्टर टाइप डिफाइन करने से ये फायदा होता है कि अगर प्रोग्राम को रन करते समय अगर कोई रजिस्टर फ्री है, if the operating system finds that there is some register free at that time, so that particular variable which is defined as register type will be stored in that variable or in that register। और इससे क्या होगा, since वो variable बहुत frequently use हो रहा है और अगर वो वहीं प्रोसेसर में एक रजिस्टर में स्टोर्ड है तो वहीं के वहीं वो एक्सेस होने में उसका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एंड दैट इज हाउ यू कैन सेव ऑन टाइम एंड दैट विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ योर प्रोग्राम। ठीक है, तो रजिस्टर टाइप वेरिएबल बनाने के लिए विच टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर गुड कैंडिडेट्स फॉर क्रिएटिंग अ रजिस्टर टाइप वेरिएबल। नाउ कोई भी वेरिएबल अगर 2 4 5 10 20 बार अगर रेफर हो रहा है, then you need not create a register variable because कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन हाँ, अगर कोई वेरिएबल बहुत ज्यादा बार कॉल हो रहा है, means few thousand times that variable is being used, then definitely वेरिएबल को बार बार एक्सेस करने में मेमोरी से टाइम काफी ज्यादा वेस्ट होगा, and by making that variable defining that variable of register type will cause a significant change in the speed of your program, या जो एग्जीक्यूशन टाइम है इट विल चेंज सिग्निफिकेंटली। अगर कोई वेरिएबल एक या दो बार कॉल हो रहा है या यूज हो रहा है तो आपको आप रजिस्टर टाइप वेरिएबल बनाओ या एक सिंपल वेरिएबल बनाओ, इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। सो दिस यू हैव टू रिमेम्बर, रजिस्टर टाइप वेरिएबल बनाने से पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो वेरिएबल, पहली बात तो वो वेरिएबल बहुत ज्यादा बार कॉल हो रहा हो, एंड दूसरी बात ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अगर आपने किसी वेरिएबल को रजिस्टर टाइप डिफाइन किया है तो रजिस्टर उसको अलॉट होगा ही होगा। इन केस अ रजिस्टर इज नॉट वेकेंट, इट इज नॉट फ्री, देन वो वेरिएबल मेमोरी में ही स्टोर होगा एंड इट विल बी ट्रीटेड लाइक ऑल अदर वेरिएबल्स। सो दिस इज रजिस्टर टाइप वेरिएबल्स। नाउ रजिस्टर टाइप वेरिएबल्स की अगर हम बात करें, उसको हम इन 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट करें तो ओनली रजिस्टर टाइप वेरिएबल्स कहाँ पे डिफरेंस करते हैं, प्लेस वेयर द वेरिएबल इज स्टोर्ड। तो रजिस्टर टाइप वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन द रजिस्टर इफ अ रजिस्टर इज फ्री, एंड बाकी सारे वेरिएबल्स कहाँ पे स्टोर होते हैं, इनटू द रैम। बाकी अगर हम बात करें इनिशियलाइजेशन की, स्कोप की और लाइफ टाइम की, रजिस्टर टाइप वेरिएबल्स का अपना ना तो कोई स्कोप होता है, ना उनका अपना कोई लाइफ टाइम होता है, एंड इनिशियलाइजेशन आल्सो डिपेंड्स ऑन द स्कोप एंड लाइफ टाइम। मींस कि अगर आप किसी रजिस्टर वेरिएबल को लोकल लेवल पे डिफाइन करोगे, मींस लोकल वेरिएबल की तरह डिफाइन करोगे, मींस कि किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन करोगे, तो उसका स्कोप और लाइफ टाइम कितना रहेगा, सिर्फ एक उस फंक्शन के अंदर। लाइक सपोज एक ऐड फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर आपने एक वेरिएबल को से रजिस्टर x नाम का वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अब ये वेरिएबल x को रजिस्टर टाइप बनाने से क्या हुआ,
if a register is free, then this variable will be stored in the memory, in the register. बस इतना ही इससे डिफाइन होगा. बाकी जो 3 पैरामीटर्स हैं, बाकी जो 3 चीजें हैं, वो किस पे डिपेंड कर रही हैं. अब ये रजिस्टर वेरिएबल हमने कहां पे, सॉरी, रजिस्टर इंट x, तो अब ये वेरिएबल हमने कहां डिफाइन किया है, एक फंक्शन के अंदर. तो इसका जो स्कोप है ये कैसा हो गया, लोकल. दिस वेरिएबल इज अ लोकल वेरिएबल. नाउ वेरिएबल्स मेनली 2 तरह के हो सकते हैं, लोकल या ग्लोबल. उनका स्कोप लोकल हो सकता है या ग्लोबल. तो हमने ये रजिस्टर टाइप वेरिएबल जो x है उसको कहां डिफाइन किया है, ऐड फंक्शन के विद इन. तो इसका स्कोप कितना होगा, विद इन द फंक्शन. इसका लाइफ टाइम कितना होगा, विद इन द फंक्शन. मतलब जैसे ये फंक्शन खत्म तो ये वेरिएबल की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, बिकॉज इट इज लोकल टू दिस फंक्शन ऐड. ठीक है. अब बात करते हैं इनिशियलाइजेशन की. लोकल वेरिएबल्स का इनिशियलाइजेशन अपने आप से नहीं होता है, दे नीड टू बी इनिशियलाइज्ड बाय द यूजर. तो यहाँ पे x वेरिएबल बीइंग अ लोकल वेरिएबल has to be initialized by the user. It will not be initialized automatically. ठीक है. अब अगर हम इसको फंक्शन को कोई वेरिएबल से मेन के बाहर, दिस इज योर मेन, इसके बाहर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, से रजिस्टर इंट x. नाउ ये वेरिएबल x इंटीजर टाइप का है और रजिस्टर स्टोरेज क्लास का है. मींस कि अगर रजिस्टर फ्री होगा तो रजिस्टर में ये वेरिएबल स्टोर हो जाएगा. ठीक है. अब इसका स्कोप क्या है, सिंस इट इज डिफाइंड आउटसाइड द मेन फंक्शन, इट्स स्कोप इज ग्लोबल. और ग्लोबल वेरिएबल्स आर एक्सटर्नल वेरिएबल्स, और एक्सटर्नल वेरिएबल्स इफ दे आर नॉट इनिशियलाइज्ड बाय द यूजर, जैसे यहाँ पे हमने x को इनिशियलाइज नहीं किया है, since we have not initialized x with a value, but x is a global variable, so it will be initialized with 0 automatically because it is a global variable. और global variables को अगर आप initialize करना भूल भी जाते हो तो वो automatically initialize हो जाता है on the basis of the type of the variable. तो यहाँ integer data type है, it will be initialized with 0. Now talking about the scope and lifetime of register variable. तो register variable का scope, यहाँ पे x variable का scope और lifetime क्या है, equal to the global variable scope and lifetime. तो x का scope क्या है और lifetime the entire program. मतलब x variable कब तक और कहाँ से accessible है, पूरे प्रोग्राम के अंदर से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, बिकॉज उसका स्कोप पूरा प्रोग्राम है और लाइफ टाइम इज द एंटायर प्रोग्राम. सो x का एग्जिस्टेंस कब तक रहेगा, x तब तक रहेगा जब तक प्रोग्राम चल रहा है. x कब आउट ऑफ एग्जिस्टेंस जाएगा, व्हेन द प्रोग्राम स्टॉप्स रनिंग. जबकि अगर हमने इस x को जब फंक्शन के अंदर डिफाइन किया था तो इसका स्कोप क्या हो गया था, द फंक्शन. तो जब तक वो फंक्शन चल रहा है तब तक ही वो वेरिएबल का एग्जिस्टेंस रहेगा, और जैसे ही वो फंक्शन खत्म हो जाएगा द एग्जिस्टेंस ऑफ द फंक्शन विल एंड. सो कहने का ये मतलब है कि रजिस्टर टाइप वेरिएबल्स जो होते हैं उनका अपना कोई स्कोप, लाइफ टाइम और इनिशियलाइजेशन नहीं होता है. देयर स्कोप, लाइफ टाइम एंड इनिशियलाइजेशन depends on where that particular variable is defined. उनका अपना कोई स्कोप, लाइफ टाइम और इनिशियलाइजेशन नहीं होता है. उनका स्कोप, लाइफ टाइम और इनिशियलाइजेशन किस पे डिपेंड करता है, वो इस पे डिपेंड करता है कि वेरिएबल को लोकली डिक्लेयर किया गया है या ग्लोबल लेवल पे. अगर लोकल डिक्लेयर किया है तो स्कोप, इनिशियलाइजेशन एंड लाइफ टाइम विल बी सेम एज द लोकल वेरिएबल. अगर वो ग्लोबल लेवल पे डिफाइन किया गया है वेरिएबल, देन द स्कोप, लाइफ टाइम एंड इनिशियलाइजेशन विल बी अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल वेरिएबल. बट रजिस्टर वेरिएबल्स का प्लेस ऑफ सेविंग कहाँ पे होती है, वो कहाँ सेव होते हैं वो वेरिएबल्स, दे आर सेव्ड इन द रजिस्टर विच आर लोकेटेड ऑन द CPU instead of the RAM. But this is only possible when there is a register free at the time you are running your program. अगर registers कहीं कहीं पे busy हैं
ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई रजिस्टर फ्री नहीं मिलता है, then your variable will be treated like any other variable and it will be stored into the memory as other variables are stored. Now the last data type is the last storage class is your static storage class. Now static storage class का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, then we'll see an example जिसके थ्रू हम static variables को समझेंगे. Now static variables का static variable का जो initialization है, 4 पॉइंट्स थे ना हमारे, तो initialization of a static variable depends on where the variable is defined, local और global level. ठीक है, मतलब कि स्टैटिक वेरिएबल का अपना कोई इनिशियलाइजेशन का वो नहीं होता है. इट डिपेंड्स ऑन वेयर द वेरिएबल इज डिफाइंड. सो if the variable is defined at a local level, then the variable is not initialized on its own, and if it is defined at a global level, then the variable is initialized on its own automatically if the user has not initialized the variable. तो static variables का अपना कोई initialization का concept नहीं होता है. Their initialization depends on where the variable has been defined, if whether it is defined at a local level or at a global level. Now talking about the second point, that is scope. Now scope of a static variable is again depends on where the variable is defined. Means static variables do not have a scope of their own. Their scope depends on where the variable is defined. अगर scope is local when it is defined at local level. Scope is global when it is defined at global level. Means कि static variables का अपना कोई scope नहीं होता है. Scope और initialization of a static variable, it depends on where the variable has been declared. If it is declared within a function or a block, तो वो local variable की तरह treat होगा और उसका scope क्या होगा, the block or function in which it is defined, and local variables are not initialized on their own, तो ये static variable अपने आप से initialize नहीं होगा. पर अगर ये static variable global level पे define होता है, तो इसका initial will take place automatically because global variables get initialized automatically, and the scope of the static variable declared at a global level will be the entire program. तो मतलब static variable का अपना कोई scope नहीं होता है, उसका अपना कोई initialization नहीं होता है. उसका scope और initialization दोनों उसके place of declaration पे depend करता है. Now static variables भी बाकी सारे variables की तरह memory में ही store होते हैं, लेकिन the point of difference, अभी तक आपको लग रहा होगा कि फिर ये तो सारा कुछ सेम हो गया आपका ऑटोमेटिक की तरह. The lifetime of a static variable is the entire program. Entire program. So here this is the point of difference.
नाउ एग्जाम्पल आप देखोगे तो आपको क्लियर होगा. लाइफ टाइम ऑफ अ स्टैटिक वेरिएबल इज द एंटायर प्रोग्राम. मींस कि स्टैटिक वेरिएबल कब तक अपने वैल्यू को रिटेन करके रखते हैं, जब तक प्रोग्राम एग्जिस्टेंस में है. When will the variable lose the value? When will the variable lose its existence? When the program ends. ठीक है. तो मतलब स्टैटिक वेरिएबल भले ही लोकल लेवल पे डिफाइंड हो, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस क्या रहता है? एंड ऑफ द प्रोग्राम. जब तक प्रोग्राम एग्जिस्ट करता है तो वेरिएबल भी एग्जिस्ट करेगा, और वेरिएबल एग्जिस्ट करता है तो उसके अंदर जो भी वैल्यू है दैट विल सर्वाइव, इट विल स्टे. ठीक है. नाउ इसको आप एग्जांपल से समझोगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल. Now, here the difference between a static and a automatic variable is given in this example. अब इसमें दो फंक्शंस डिफाइन किए हैं. यहाँ तो इस पार्ट में प्रोग्राम के कुछ खास नहीं दिया है. Only two functions have been declared, f1 and f2. ठीक है. फिर f1 को कॉल करा है और उसके बाद में भी f2 को कॉल करा होगा. ठीक है. Now let us actually f1 को 3 बार कॉल करा है. If you see, the function f1 is called 3 times. एक बार पहले कॉल किया था और 2 बार यहाँ कॉल किया. And similarly the function f2 is called 3 times. ठीक है. Now let us see what is written in these two functions. Now function 1 के अंदर क्या किया इनने? f1 में एक n नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप, और उसमें इनिशियलाइज कर दी वैल्यू 1. Now this will be an automatic variable क्योंकि से ये फंक्शन के अंदर डिफाइंड है. तो बाय वर्च्यू ऑफ कि इट इज डिफाइंड whenever a variable is defined within a function or a block, it is a local variable, and local variables are automatic variables in nature. तो ये एक n नाम का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया जिसको हमने इनिशियलाइज करा 1 वैल्यू. अब हमने क्या किया? n को 1 से इंक्रीज कराया. ठीक है. n प्लस प्लस, सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से बढ़ करके हो जाएगी 2. एंड यहाँ पे हमने n की वैल्यू को प्रिंट करा दिया. सो द वैल्यू ऑफ n विल बी प्रिंटेड एज 2. नाउ सबसे पहले जब आप इस प्रोग्राम सबसे पहले जब आपका यहाँ पे f1 फंक्शन कॉल हुआ, एक बार फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे f1 फंक्शन कॉल होगा, तो क्या होगा? n की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? n की वैल्यू आपकी क्या प्रिंट हो जाएगी? यहाँ पे n is 2. ये पहली बार जब f1 फंक्शन कॉल हुआ तो n is 2 आंसर आ जाएगा. दोबारा जब फिर f1 फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल विल गो टू दिस फंक्शन f1 अगेन. अब n एक लोकल वेरिएबल था, तो जैसे ही ये फंक्शन खत्म हुआ तो ये वेरिएबल भी खत्म हो गया. फंक्शन क्रिएट वेरिएबल क्रिएट हुआ, यूज हुआ, और जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ वेरिएबल का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया क्योंकि से ये लोकल वेरिएबल था. ठीक है. तो अब जब दोबारा फंक्शन f1 कॉल हुआ तो फिर से क्या होगा? n नाम का दोबारा एक वेरिएबल क्रिएट होगा. इट विल बी री इनिशियलाइज्ड विथ 1. अब री इनिशियलाइज होगा 1 से, तो क्या होगा? फिर आप n को 1 से इंक्रीज करोगे, अगेन n विल बिकम 2, and again you will get the output as n is 2. And the same thing will happen when you call this function third time. तीसरी बार फिर इस फंक्शन को कॉल करोगे, फिर से क्या होगा? ये फंक्शन फिर से कॉल होगा, n फिर से क्रिएट होगा n नाम का वेरिएबल, फिर से रीइनिशियलाइज होगा 1 से, एंड बढ़ करके हो जाएगा 2, एंड देन द आउटपुट विल अगेन बी 2. सो दैट मीन्स कि जितने बार आप, अगर आप 100 बार f1 फंक्शन को कॉल करोगे तो हर बार n नाम का वेरिएबल रिक्रिएट होगा या रीडिफाइन होगा, क्योंकि से पुराना वाला वेरिएबल तो आउट ऑफ स्कोप जा चुका है. इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड. जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ वो वेरिएबल खत्म हो गया. जब दोबारा फंक्शन कॉल हुआ वो वेरिएबल दोबारा से रीडिफाइन हुआ और रीइनिशियलाइज हुआ. तो एवरी टाइम यू एंटर द फंक्शन f1 इट विल बी रीइनिशियलाइज्ड विद 1, और 1 को जब आप 1 से इंक्रीज करोगे इट विल बिकम 2. सो 3 टाइम्स यू आर गेटिंग द आंसर एज 2. ठीक है. Now this was an automatic variable वाला केस था. Now f2 फंक्शन जो लिखा गया है सेम उसी पैटर्न पे लिखा गया है.
Only there's a very slight difference if you see. यहाँ पे हमने क्या किया था, int n is equal to 1 लिखा था, ठीक है. बस हमने इस m is equal to 1 के पहले static keyword add कर दिया. So that means we are defining this variable m within a function f2, but now we are defining it as static in nature. अब ये variable static हो गया, और static variable की ये आपका next line में आएगा. ये this will come here in the next line. This is a misprint, so it will come here m plus plus semicolon. ठीक है, यहाँ से आप हटा करके इसको इन दोनों लाइंस के बीच में लिख दोगे. m plus plus will increase the value of m by 1 and it will print the value of m here. Now, अब ये तो हो गया फंक्शन. अब क्या हो रहा है, यहाँ पे f2 फंक्शन कॉल हुआ, तो क्या होगा, f2 फंक्शन पे कंट्रोल आएगा. It will create a variable m. Now, जब पहली बार f2 फंक्शन कॉल होगा, तब m नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा एंड इनिशियलाइज होगा 1 से. It will only be initialized once in the lifetime. Static variable को हमेशा याद रखो आप. You can just write it down also. Static variables are initialized only once in their lifetime. ठीक है, तो जब वेरिएबल पहली बार existence में आएगा, it will be initialized with 1, and since it is static in nature, अगली बार वेरिएबल ना तो क्रिएट होगा, रिक्रिएट होगा, ना ही री इनिशियलाइज होगा, बिकॉज वेरिएबल प्रोग्राम के एंड तक स्टे करने वाला है. इसकी लाइफ टाइम क्या होती है स्टैटिक वेरिएबल की, एंड ऑफ द प्रोग्राम. ठीक है, तो बीइंग स्टैटिक, ये m वेरिएबल बार बार री इनिशियलाइज नहीं होगा. इट विल बी इनिशियलाइज्ड ओनली वंस फॉर द फर्स्ट टाइम, और उसके बाद अगले बार से वो वेरिएबल को एज इट इज उसकी वैल्यू को यूज करेगा. नाउ m की वैल्यू 1 से इंक्रीज होने के बाद, यहाँ पे m प्लस प्लस था, तो m की वैल्यू 1 से इंक्रीज होने के बाद m की वैल्यू 2 हो जाएगी. इफ यू प्रिंट द वैल्यू ऑफ m, द वैल्यू ऑफ m विल बी प्रिंटेड एज 2 फॉर द फर्स्ट टाइम. ये हम कब की बात कर रहे हैं, जब फंक्शन कॉल हो रहा है फर्स्ट टाइम. f2 फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, देन द वैल्यू ऑफ m इज प्रिंटेड एज 2. सेकेंड टाइम जब फंक्शन 2 कॉल होगा, तो फिर से f2 फंक्शन पे कंट्रोल जाएगा, लेकिन तब ये लाइन स्किप हो जाएगी. दिस लाइन विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड बिकॉज वेरिएबल ऑलरेडी क्रिएटेड है और उसके अंदर एक वैल्यू है, तो ना तो वेरिएबल क्रिएट होगा, ना ही इनिशियलाइज होगा. एंड m प्लस प्लस करने से क्या होगा, m की पहले वैल्यू क्या थी 2, सो नाउ इट विल बिकम 3, एंड सो द आउटपुट ऑफ दिस विल बी m is 3. Then similarly जब third time f2 function call होगा, तो again f2 will be called for the third time. Again this line will be skipped. m plus plus से आपकी जो m की वैल्यू हो जाएगी 3 से बढ़ करके हो जाएगी 4, and the output will be m is 4. Now आपने यहाँ देखा, यहाँ हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया था ऑटोमेटिक, और यहाँ हमने डिक्लेयर किया था स्टैटिक. बाकी सारा फंक्शन हमारा सेम है. बोथ दीज फंक्शंस आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ द फंक्शंस. यहाँ पे एक सिंपल वेरिएबल क्रिएट किया गया है ऑटोमेटिक टाइप, और यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट किया गया है. बट इफ यू सी द आउटपुट इन तीन फंक्शंस के कॉल में, सेम f1 फंक्शन के कॉल में n की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो रही है. इट इज रिमेनिंग 2. व्हाई दिस इज हैपनिंग, क्योंकि से हर बार वेरिएबल दोबारा से क्रिएट हो रहा है, एंड हर बार वो इनिशियलाइज हो रहा है 1 से, एंड देन 1 से बढ़ करके n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n प्लस प्लस से 2. सो एवरी टाइम इट विल गिव द आंसर एज 2. बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है. यहाँ पे हमने वेरिएबल को स्टैटिक बनाया है, तो स्टैटिक वेरिएबल्स डू नॉट लूज देयर वैल्यू, दे कैरी द वैल्यू टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम. तो स्टैटिक वेरिएबल सिर्फ पहली बार 1 से इनिशियलाइज होगा, 1 से बढ़ करके 2 हो जाएगा m प्लस प्लस के कारण, एंड सो इट विल प्रिंट 2, बट द नेक्स्ट टाइम इट विल प्रिंट 3, एंड द नेक्स्ट टाइम इट विल प्रिंट 4. तो स्टैटिक वेरिएबल्स का यूज आप कहाँ पे कर सकते हो, कहीं भी आपको एक काउंटर मेंटेन करना है, जहां पे जितने बार फंक्शन कॉल हो
the counter value should be increased by 1. There you cannot create an automatic variable, there you have to use the static variable. क्योंकि से अगर हम automatic variable use करेंगे तो हर बार आपका काउंटर एक सेम वैल्यू पे रुका रहेगा, जबकि अगर आप स्टैटिक वेरिएबल बनाओगे तो the static variable is not reinitialized again and again, so it will preserve the value of the variable, and every time the value of the variable will be increased by 1. So static variables are मतलब काउंटर मेंटेन करने के लिए, किसी भी चीज का काउंटर मेंटेन करने के लिए स्टैटिक वेरिएबल्स का यूज किया जा सकता है, ठीक है. So these were the 4 storage classes that we have learned. One is automatic, all local variables are automatic. Then second was external, all global variables are external. Then register class and static class. Okay. Now, one more thing. एक और चीज है, अगर कभी जस्ट ये नोट वाले पार्ट में आप देख सकते हो, if in any program the local variable and the global variable has the same name, then within the function in which the local variable is defined, the local variable has high priority, but we can access the global variable also with the help of the scope resolution operator. Now this is in C++, क्योंकि से ये जो ऑपरेटर है scope resolution operator, it is new in C++, so this was not there in C. तो अगर मान लीजिए ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, सपोज इफ दिस वाज नॉट C++, अगर ये C होता तो ये आपने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करा x नाम का, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x नाम का, 20 वैल्यू दी, और यहाँ पे भी मेन फंक्शन के अंदर, एक तो मेन फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया वेरिएबल x और एक मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया x वेरिएबल. नाउ सीधी सी बात है, अगर ये बात C की होती, C लैंग्वेज में होता, तो C में एक ही नाम के 2 वेरिएबल्स आप नहीं डिफाइन कर सकते हो, या अगर आप डिफाइन करोगे भी तो क्या होगा कि जब भी आप लोकल लेवल पे मतलब तब ऐसा होगा कि आपका जैसे फंक्शन के अंदर जब आप वेरिएबल को एक्सेस करोगे तो लोकल वेरिएबल इट विल पिक द वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल. नाउ सपोज अगर हम C++ में ऐसा करना चाहते हैं कि आई वांट टू हैव अ लोकल वेरिएबल एंड अ ग्लोबल वेरिएबल हैविंग द सेम नेम, ठीक है. अब अगर हम यहाँ पे फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर हमने x को डिफाइन किया है, तो x इस x वेरिएबल का स्कोप क्या है, स्कोप इज द मेन फंक्शन, ठीक है. और जो ग्लोबल वेरिएबल है वो एंटायर प्रोग्राम में यूज हो सकता है, ठीक है. अब अगर हम यहाँ पे कहीं भी x की वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमेशा जो आपका लोकल वैल्यू है, लोकल वेरिएबल की वैल्यू है, दैट विल बी प्रिंटेड. सो दिस वैल्यू कैन नॉट बी एक्सेस्ड इन एनी वे, है ना. तो अब कैसे करोगे, जब भी आप प्रिंट करोगे x की वैल्यू को, इट इज ऑलवेज गोइंग टू प्रिंट 10. अगर आप इस ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हो, देन C++ में इट इज वेरी इजी, यू हैव टू जस्ट पुट अ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बिफोर द नेम ऑफ द वेरिएबल. नाउ अगर आप ऐसा लिख देते हो C out this, एंड एक लिखा आपने C out x, C out सिंपल x लिखोगे तो इट विल प्रिंट द लोकल वैल्यू दैट इज 10. और जब आप लिखते हो C out डबल कोलन, यानी कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, तो उस केस में इसका आंसर आएगा 20, क्योंकि इसे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाने से किसी वेरिएबल के आगे के पहले इट विल रेफर टू इट्स ग्लोबल वैल्यू, ठीक है. तो अगर
किसी भी प्रोग्राम में आपका लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का नाम सेम है और आप फंक्शन के अंदर से ग्लोबल वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो, तो अगर आप सिर्फ x लिखोगे तो देन इट विल एक्सेस द लोकल वैल्यू. सो यू वांट टू एक्सेस द ग्लोबल वैल्यू, पुट द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. तो कंपाइलर को क्या पता चल जाएगा कि आप x की ग्लोबल वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो, प्रिंट करना चाहते हो. सो द ग्लोबल वैल्यू ऑफ x विल बी used here, so that means it will be printed here, so the answer will be 20. ठीक है. So this is the use of scope resolution operator. Now scope resolution operator C में था ही नहीं, तो इसीलिए C में ये चीज possible नहीं हो पाती थी. This is new in C++. ठीक है. Few operators are there which were not there in C, and they are new to C++. So one of them is the scope resolution operator. Now, this was all in this chapter, that is the functions chapter. Functions chapter, now we are over with the functions chapter, and from the next class onwards, I will start with the class chapter. Okay, class क्या होती है, मतलब अभी तक जो हम चीजें पढ़ रहे थे almost they were all similar to the C programming language. ज्यादा कुछ हमने बस C in और C out और कुछ few operators हमने नए सीखे थे जो सी में नहीं होते थे. बट प्रोग्रामिंग जो स्टाइल थी, इट वाज, अभी तक जो भी हम प्रोग्राम्स लिख रहे थे, they were not using any classes, so they were the simple structured programming language ही हम यूज कर रहे थे. Now in the next class onwards we'll start with class. हम क्लास के को यूज करके प्रोग्राम्स बनाएंगे, and then actually आपका जो C plus वाला part है, that will start, because I told you earlier in the introduction class कि C++ actually क्या है. पहले उसका नाम था C with classes. Okay, C with classes means कि C में classes का concept या object oriented का concept add कर दिया गया था. So first it was named as C with classes, but then that name was not found to be very appropriate और लंबा सा नाम था. Then it was changed to C++. So C++ means C में कुछ जोड़ दिया, and that became C++. So I'll end today's lecture here, and next class we'll start with the class topic.